So, welcome back, guys. A brand new class of Advanced Web Publishing JavaScript. In this class, firstly, we revise the yesterday lecture and then we start a new topic, and the name of the topic is data types. So, let's revise the topic that we have discussed yesterday, or in other words, we can say that the topic that have given to you for homework. So, we have given you two topics. The first one is what is variable, and the second one is how to declare and assess the variable in JavaScript. So as we know that what are variables? Variables are a container that store the value, है ना? As we know that we have discussed in last class. So and the second one is I had given you a assignment or a question, that is how to assess the these two values, है ना? Wait. Okay, this one. How to assess the value of age and how to assess the value of percentage. So let's start with the practical. So as we know that this is our practical. So let's start to assess the value. Firstly, मैं हमने क्या किया था, हमने इस वैल्यू को असेस कर लिया था, लिख लिया था हमने सुनील. Save, open the web browser, and we can see that here we have a thing that my name is Sunil. Okay, now how to assess second value? Simple, write document dot write, and here my age is, and use concatenate operator, and my age is, where is the age stored? It's stored in variable name age. Then the next one is document dot write. Okay, here we use another thing called alert, 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 and inside the alert percentage is, and what is the percentage? Plus and per. Okay, save. So now see the output. Look at this. Firstly execute which one? Percentage, because the priority of alert is higher than priority of this thing, है ना? So firstly we see the percentage. Okay, after that we see two things. Now my name is this and my age is this. So here we can use here double quotes, bracket, and inside the bracket br tag. So wait, let's start. As we see that the value of this thing is not displayed, we need to see what happened, why this value is not displayed. This thing is working, but I don't know why this thing is not working here. Let's see our some another example. Here we go, and same, yes, wait, basic script, this one. Okay, this is the same thing, you know, we have used in last. What, why this thing is not working? Control V, these are same now. Refresh. Okay, this thing is not working, just wait. Save. Yeah. Okay, this thing is working now. Use here control V. Okay, another is alert. Inside the alert we have simple write per. हम सिंपल लिखते हैं per, देखते हैं इसकी वैल्यू डिस्प्ले करते हैं. 23.5 आनी चाहिए. ओके, here the output and this one. So हमने देख लिया ना कि मेरे पास तीनों तरह की वैल्यू जो मेरे पास आगे डिस्प्ले करवा दी मैंने, जो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई. So this one is string. String is what is string basically? String is combination of character.
Okay, as we know that na, SUNEEL, all these are character and the combination of character is string. So just try to write this thing in single code. Now look what happened. Okay, okay. बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ना सिंगल कोड और डबल कोड्स में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तरीके से काम करता है। तो जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डबल कोड्स में हमेशा कंफर्टेबल होते हैं, सो वी यूज़ डबल कोड्स। ओके, सो दिस इज अ टॉपिक एंड देयर इज अ वन क्वेश्चन दैट वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी कि हाउ टू डिस्प्ले द वैल्यू लाइक दिस, माई एज इज, या और आई एम 23 ईयर ओल्ड। सो बेसिकली मुझे ये आउटपुट दिखानी है कि इस तरह मेरे पास क्या आए, आउटपुट आए। अब देखिए दो चीज़ें देखनी है हमने इसमें, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ये वाला एज जो है ये तो मेरी वैल्यू है ना, ये दो चीज़ें मुझे अपनी मर्ज़ी से दिखानी, तो हम सिंपल दिख देते हैं कंट्रोल। ये चीज़ किस में आ जाएगी मेरी, डबल कोट्स में। ये चीज़ भी किस में आ जाएगी मेरी, डबल कोट्स में। अब देखिए इस चीज़ को इस चीज़ के साथ कंकैटिनेट करना है मैंने, तो यहाँ भी प्लस का सिंबल आ जाएगा और यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो मेरी दो चीज़ें क्या हो गई, कंकैटिनेट हो गई। और बेसिकली ये वेरिएबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, एज। सो लेट्स सी, DOCUME document dot write and start here and write I am plus age plus year old. That's it. I am 23 year old. So here we see I am 23 year old. तो बेसिकली इसने क्या किया, ये दो वैल्यू है आई एम और ईयर ओल्ड, ये तो मैंने वैसे लिखी थी, जो मैंने यहाँ लिखी थी इसने वैसे उठा ली। और एज जो था 23 कहाँ से उसने उठाया, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी, सो यहाँ से उसने उस वैल्यू को उठाया। सो ये दो चीज़ें थी जो बेसिकली आप लोगों को टास्क मिला हुआ था। तो ये देखिए ये किया मैंने, डिक्लेयर या वेरिएबल declaration and this one is assessing the variable। तो ये चीज़ होती है मेरे पास बेसिकली। सो बेसिकली मैं इसमें दो क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली वेरिएबल एंड डेटा टाइप। लाइक मैंने पहले भी कहा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास किस टाइप का डेटा है। लाइक यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग है, ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा एक तरह से रियल वैल्यू, हम पॉइंट वैल्यू बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास, तो हम लिख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, दिस वन न्यूमेरिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, एंड द थर्ड वन इज this one is, we can say that real or point, or what we call in maybe there is some problem in my mouse, this one is floating point value, or we can say that this is floating point value, or in other words we can say that float. So these are our basic simple variables, how to declare the variable, how to assessing the value of variable. So next topic is what are data types. So बेसिकली होता क्या है कि डेटा टाइप क्या होता है, मेरे पास मुझे अपने प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि मैं किस टाइप का डेटा जो है डिक्लेयर कर रहा हूँ। लाइक आई हैव लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा ना, लाइक करैक्टर, इंटीजर, फ्लोट, पिक्चर्स, म्यूजिक्स, लॉट ऑफ थिंग्स है ना। सो मुझे अपने कंपाइलर को या सिंपल प्रोग्रामिंग में मुझे बताना पड़ता है अपने कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को कि मैं किस तरह का डेटा जो है
इनपुट कर रहा हूँ। बेसिकली देखिए यहाँ मुझे नहीं बताना पड़ रहा है कि क्योंकि मेरा इंटरप्रेटर अपने आप उस चीज़ को समझ रहा है, लेकिन लाइक इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मुझे किस टाइप का डेटा जो है डिक्लेयर करना है। सो डेटा टाइप इसमें भी, जावास्क्रिप्ट में भी और बाकी लैंग्वेज में भी क्या होगा, सेम होगा। बेसिक कंसेप्ट प्रोग्रामिंग के सभी के सेम है। सो डेटा टाइप स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ डेटा सच ए नंबर करेक्टर कैन स्टोर एंड मैनिपुलेट विद इन द प्रोग्राम। तो बेसिकली ये क्या बताता है कि मुझे किस टाइप का डेटा जो है, लाइक नंबर है करेक्टर है, जो मुझे क्या करना है, स्टोर करना है और उस डेटा को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है किसके अंदर, प्रोग्राम में। लाइक इन एग्जाम्पल में हमने किया ही ना, मैंने नेम लिखा, एज लिखा, फिर परसेंटेज लिखा, तो मेरे पास बेसिकली क्या हुआ, तीनों टाइप का डेटा आया। सो इन जावास्क्रिप्ट वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा टाइप, फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द सेकंड वन इज कंपोजिट डेटा टाइप। प्रिमिटिव मीन प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं मेरे पास, PRIMARY, प्राइमरी। कि बेसिकली इन डेटा टाइप्स के बिना मेरा काम ही नहीं होता। बेसिकली जो सिंपल इनपुट मैं दे रहा हूँ, चाहे मैं नेम लिख रहा हूँ, लाइक मैं लिख रहा हूँ हेलो, मैं लिख रहा हूँ 5.7, तो ये बे क्या है मेरे पास, ये तो मुझे वैल्यू देनी ही पड़ेगी ना, इनके बिना मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ होते हैं मेरे पास प्राइमरी। कंपोजिट डेटा टाइप अलग होते हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी अभी तक इस चीज़ की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहे हैं हम लोग अपना टॉपिक, तो इन डेटा टाइप्स की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द सिंपलेस्ट block building of program, a building block of program, their type can be assign a single literal value such as number or a string. Basically primitive data type in primary data type, जो सबसे पहले मुझे अपने प्रोग्राम में यूज़ करने ही पड़ते हैं। जैसे देखिए मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले, कि नंबरिक वैल्यू दे रहा हूँ मैं, या मैं करैक्टर वैल्यू दे रहा हूँ, या मैं स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ, या मैं फ्लोटिंग वैल्यू दे रहा हूँ, तो मुझे अपने प्रोग्राम में वो चीज़ बतानी ही पड़ती है। तो वो चीज़ क्या होती है मेरे पास, प्राइमरी डेटा टाइप। So we have these four type of primary data type. The first one is numerical data type, floating data type, string and boolean. Basically ये तीन जो है हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। The first is integer. Integer your numeric integer are whole number or do not contain any decimal or point value. कोई भी नंबर जो कि मेरे पास any positive और negative number that does not contain point value is न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल डेटा टाइप और न्यूमेरिकल लेटरल। कोई भी नंबर जो क्या करता है, पॉइंट वैल्यू स्टोर नहीं करता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, किसके अंदर आएगा मेरे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर आएगा, न्यूमेरिकल लेटरल्स के अंदर आएगा। फ्लोटिंग एनी नंबर आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव दैट कंटेन फ्लोटिंग वैल्यू और दैट कंटेन पॉइंट वैल्यू, लाइक 12.6, दिस इज अवर फ्लोटिंग वैल्यू, क्योंकि इसमें वैल्यू किस में आ रही है, पॉइंट में। बेसिकली डेसिमल बोल देते हैं हम इसे, लेकिन हम ना कंप्यूटर में डेसिमल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल मेरे पास क्या आ जाता है, एक प्रॉपर नंबर सिस्टम आ जाता है। तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करेंगे, पॉइंट वैल्यू या फ्लोट या रियल वैल्यू। नाउ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ करेक्टर, लाइक मैं लिख रहा हूँ A B, यहाँ मैं कॉमा लगा के लिख रहा हूँ C। ये क्या है मेरे पास, करेक्टर है 3, लेकिन जब इन तीनों करेक्टर्स को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, लाइक ऐसे A B C, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास क्या बन गई, स्ट्रिंग बन गई। और ये क्या है मेरे पास, करेक्टर्स हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स इज स्ट्रिंग। द नेक्स्ट वन इज बूलियन। बूलियन कंटेन ओनली वन ऑफ द टू वैल्यू, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। बूलियन ने क्या करना होता है, ओनली एक्सेप्ट, ओनली रिटर्न रिटर्न 0 या 1, यानी फॉल्स या ट्रू। बूलियन हमेशा मुझे दोनों में से एक वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। लाइक मैं बोलता हूँ कि ये स्टूडेंट जो है, या तो ये घर जाएगा या घर नहीं जाएगा, तीसरा कोई आंसर नहीं होगा मेरे पास, तो वहाँ पे दो ही आंसर होंगे, यस या नो। तो दिस इज इन बूलियन। तो ये चीज़ आती है मेरे पास किसके अंदर, डेटा टाइप्स के अंदर। बेसिकली प्रोग्राम तो हमने देख ही लिया, जो हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया वो इसका प्रोग्राम ही है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी अगेन द प्रैक्टिकल पोर्शन इन दिस प्रोग्राम। दैट प्रैक्टिकल पोर्शन वी अगेन ओपन द सेम प्रोग्राम एंड हेयर इन दिस प्रोग्राम, है ना। देखिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज
सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने किस तरह की स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करनी, तो मैंने उसे कौन सी बता दी, जावास्क्रिप्ट। फिर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के सबसे पहले हम कीवर्ड यूज़ करते हैं VAR, उसके अंदर वेरिएबल का नाम और उसके अंदर वैल्यू। नाउ द सेकंड इज VAR एज वैल्यू, VAR परसेंटेज वैल्यू। अब देखिए ये जो फर्स्ट वन है, ये सुनिए, ये किस तरह की वैल्यू मेरे पास, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। दिस वन इज मेरे पास किस तरह की वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल है या नंबर बोल सकते हैं। एंड दिस वन इज फ्लोटिंग और पॉइंट वैल्यू। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास तीन तरह के क्या हैं, डेटा टाइप्स हैं। तो ये चीज़ थी मेरे पास, ये मेरा आज का लेक्चर था। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ऑपरेटर्स। तो कल हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स। सो वी हैव बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, दे स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास। Okay, thank you and have a nice day.